Hello guys, welcome to our YouTube channel Ask Edu Info. As you can see on my screen that our main topic is agreement of the verb with the subject. In this video, we are going to discuss about the yearly based questions appeared on the given topic for SSC and banking examination. मतलब इस वीडियो में हम बताने जाने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक भी था या फिर जो हमारा करंट टॉपिक भी है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में है, स्पेशली जो एग्ज़ाम्स में आता है जैसे एसएससी एग्ज़ाम में और बैंकिंग एग्ज़ाम में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नेम्ड एज ए टू बी सॉरी ई मीन्स ए टू ई तक हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है। वन ऑफ दीज पार्ट मे और मे नॉट कंटेन एरर मीन्स यहाँ पे कोई भी एक पार्ट में हमें शायद एरर नहीं मिलेगा। From the alternative given below, choose the errorless combination. Means यहाँ पे कुछ भी ये जितने सारे जो हमारे जो सेंटेंसेस है ए टू ई तक, यहाँ पे ये हमारा जो राइट सबसे करेक्ट सेंटेंस हमें चूज़ करना है। इफ़ दिस इज़ नो देयर इज़ नो एरर, मतलब यहाँ पे अगर कोई एरर ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे सेंटेंस में किसी में भी एरर ना हो। अगर कोई एरर ना हो तो हमें सबसे लास्ट ऑप्शन नंबर ई चूज़ करना है, जहाँ पे फर्स्ट हमारा सेंटेंस है रिकॉर्ड इन प्रमोटिंग ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिमेन। नेक्स्ट ऑप्शन है वीक इवन with years of a robust economic growth, making work environment safer is a low priority issue for India at the moment. Although the productivity benefits of such investment have always been clear. हमारा सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है इंडिया रिकॉर्ड। इंडिया रिकॉर्ड जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द रूल in general that if a subject is singular, the verb must also be singular, and if the subject is plural, the verb must also be plural. As if the subject is India record, then the verb must be remains. Here our verb is remain as given in the first sentence. That is wrong because our singular verb must be remains. Next, our second question. Read the sentence to find out whether there is any grammatical error in it. Choose the sentence which is correct without any error in it. If all the sentences are correct, mark option 5 as your answer. First sentence. Saudi Arabia appears to be frustrated that it is not able to defeat the Houthis even after year of heavy bombing. Saudi Arabia appeared to be frustrated that it is not able to defeating the Houthis even after year of heavy bombing. Saudi Arabia appear to be frustrated that it is not able to defeat the Houthis even after year of heavy bombing. And the fourth one is the last one. Saudi Arabia appearing to frustrated that it is not able to defeat the Houthis even after years of bombing. All are incorrect is the fifth option. Our first sentence is our correct option. क्या दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं हम एक बार वापस से. Saudi Arabia appears
to be frustrated that it is not able to defeat the Houthis even after years of heavy bombing. This is our correct answer. Why? Because in the sentence 1, the singular subject Saudi Arabia follows the singular verb appears, and the tense has been correctly used, which makes the sentence grammatically and contextually correct. Option 2 and 3 are wrong because of the usage of the plural verb with a singular subject. मतलब हमारा जो सेकंड और थर्ड नंबर जो पॉइंट है उसमें हमारे साथ प्लूरल वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब दिया गया है. जैसे यहाँ पे सऊदी अरेबिया हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ एक प्लूरल वर्ब अपीयर दिया गया है. And the fourth number is Saudi Arabia appearing to be frustrated that it is not able to defeat the Houthis even after years of heavy bombing. The tense is wrong here. Appearing is a wrong tense. With a frustrated, to be frustrated here it has given a wrong tense. That's why the fourth one is also incorrect. So our third number question is, in the question given below, a sentence is given and is divided into 3 parts. Means there are 3 sentences. For each part a correction statement is also given. मतलब हमारे जो sentences ऊपर दिए गए हैं उसके साथ साथ उसके लिए correct sentence नीचे दिया गया है. जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है, इस इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, यू हैव टू डिटरमाइन विच पार्ट रिक्वायर्स करेक्शन एंड मार्क इट एज योर आंसर. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वन ऑफ द थॉर्नेस्ट रिसर्च इश्यूज़. इसके साथ करेक्टेड दिया गया है, करेक्शन किया गया सेंटेंस है वन इज़ द थॉर्नेस्ट रिसर्च इशू. नेक्स्ट वाला सेंटेंस है डेवलपमेंटल रिसर्चर्स फेस कंसर्न. उसके साथ दिया गया है डेवलपमेंटल रिसर्चर्स फेस कंसर्न्स. यहाँ पे कंसर्न्स दिया गया है और ऊपर वाले में कंसर्न दिया गया है. ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में. The third one is the measurement of change and differences over age and time. The measurement of change and differences under age and time. यहाँ पे over दिया गया है, यहाँ पे under दिया गया है. तो which one is the correct one? We have to find out. The error lies in the second part of the sentence. यहाँ पे कोई गलती है second part में. क्या है? According to the subject verb agreement, which states that the subject and verb must agree with one another in number, singular or plural. Thus, if a subject is singular, its verb must also be plural. If a subject is plural, the verb must also be plural. Here the subject is one research issue, hence the verb should be singular. That means it doesn't use concerns. Hence the correct sentence is one. Our fourth question is, find out which part has an error and mark it as your answer. If there is no error, mark no error as your answer. जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट वाले पॉइंट में देखा था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में A to E तक का हमारा कुछ सेंटेंसेस दिया गया था. यहाँ पे A to D तक का कुछ सेंटेंसेस दिया गया है. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द महाराष्ट्र पुलिस हैज़ रजिस्टर्ड अ केस ऑफ अटेम्प्ट. नेक्स्ट सेंटेंस है टू मर्डर अ रिसर्च इज़ on for accused, for the accused. Speaking at a press conference in the evening, Police Commissioner Bhaskar Rao said he had directed the office to investigate the incident.
So we have here four points. Last one is the four one. So which one is correct? Find out. What is our answer? Police is a collective noun. As you know, police is a collective noun. It doesn't denote to a single person. It denotes to a large number of person together are known as police. तो पुलिस एज यू नो कि एक से बहु लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है. And normally collective noun is used as singular, but there are certain nouns which are used with plural verbs. यहाँ पे plural पुलिस के साथ मतलब collective noun के साथ हम लोग हमेशा singular यूज़ करते हैं normal collective noun के साथ, पर कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जिसके साथ हम लोग plural यूज़ कर सकते हैं. For example, cattle, gentry, pleasantry, poultry, police, people, clergy, etc. Hence, police have registered is correct. Our fifth question is, in the question given below, a sentence is given and it is divided in three parts, 1, 2, 3 in Roman letters. You can see on my screen. For each part, a correction statement is also given. You have to determine which part requires correction and mark it as your answer. Normally, when demand and supply is or out of sync, you either increase the supply or you adjust the price mechanism. First point is normally when demand and supply are, मतलब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ पे हम आर का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है आउट ऑफ सिंक यू नाइदर इंक्रीज द सप्लाई. आउट ऑफ सिंक यू नाइदर, यहाँ पे आइदर हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को नाइदर यूज़ करने का बात बोल रहा है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉर यू एडजस्ट द प्राइस मेकनिज़म. यहाँ पे और के बदले हमें नॉर यूज़ करने के लिए बोल रहा है. विच वन इज़ द करेक्ट वन, फाइंड इट आउट. जो आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे थे, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लिखा हुआ है नॉर्मली व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर. जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें ये लिखा गया है, पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, ईज़. इट यूज़ अ ईज़ वर्ब विच मीन्स अ सिंगुलर वर्ब फॉर टू separate type of nouns which are demand and supply. These are two separate nouns, so two separate singular nouns. That is not a compound noun. It use is, which means the first sentence is the incorrect sentence. क्योंकि हम जब प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और जहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. तो यहाँ पे कौन सा वर्ब होना चाहिए था, आर. चलिए इसके साथ अब हम ईयरली बेस्ड क्वेश्चन को छोड़कर कुछ जनरल क्वेश्चंस पे फॉलो अप करने जा रहे हैं. अब मैं कुछ नए टाइप्स के जनरल टाइप्स के जो नॉर्मली आते हैं हर लेवल के, जब आप ये इस टॉपिक के ऊपर हर लेवल पे आप जब कुछ सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली बेसिकली मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द जनरल एज वेल एज हिज स्टाफ डैश देयर. यहाँ पे जनरल एक सब्जेक्ट है, हिज स्टाफ एक सब्जेक्ट है जो मैंने रेड और हल्का सा रेडिश टोन में मैंने मार्क किया है, और एज वेल एज एक फ्रेज़ है. तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब हम लोग एज वेल एज जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. हम लोग मेनली दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए एज वेल एज यूज़ कर रहे हैं, और फिर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. तो हमारे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज.
नेक्स्ट फिलअप क्या है, थ्रोइंग स्टोन्स डैश फॉरबिडन। यहाँ पे थ्रोइंग स्टोन्स, हम कुछ थ्रो कर रहे हैं, तो कितना यहाँ पे है ये बताया नहीं गया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मान के ही हम इससे सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, क्या है, ईज। नेक्स्ट हमारा क्या है, द स्कॉलर एंड द पोएट डैश डेड। यहाँ पे स्कॉलर एक अलग आदमी है, द पोएट इज़ अलग दूसरा आदमी, और ये दोनों आदमियों को, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट्स को जॉइन कर रहे हैं हम लोग एक कंजंक्शन से जो है एंड। सो एंड से हम लोग ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो एंड के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, तो हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, एज अ टू डिफरेंट सब्जेक्ट है और हम लोग एंड के साथ जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद भी ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जा रहा है, इसीलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। हमारा प्लूरल वर्ब है आर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन विथ हिज फ्रेंड प्रेजेंट। विथ फ्रेज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए। जब हम लोग पैरेंथेटिकल फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, तो हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए, मोहन विथ हिज फ्रेंड्स was प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइदर ऑफ दीज क्वेश्चंस डैश डिस्कस। नाइदर ऑफ दीज क्वेश्चंस appear difficult। नाइदर ऑफ दीज क्वेश्चंस डैश डिफ़िकल्ट, appear इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, नाइदर है, ऑफ है, इसीलिए हम लोग इधर appear इस्तेमाल कर रहे हैं, appears नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, लैम्ब टेल्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। लैम्ब टेल्स एक बुक है और एन इंटरेस्टिंग मतलब एक बुक के बारे में बात हो रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ऑफकोर्स हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, उसीलिए आंसर होगा लैम्ब टेल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट वाला फिलअप देखते हैं, द बिहेवियर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स डैश हाईली ऑब्जेक्शनल। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दो डिफरेंट प्लूरल सब्जेक्ट्स है। बिहेवियर एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इन दोनों के बिहेवियर्स के बारे में बोला जा रहा है, तो अनकाउंटेबल चीज़ है। तो फिर हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कौन से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, एज इफ़ हमारा यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल हो रहा है। बिहेवियर हम लोग का मेन नाउन है, बॉयज़ भले ही प्लूरल हो, गर्ल्स भले ही प्लूरल हो, बट हमारा बिहेवियर मेन नाउन है, इसलिए एंड लगने के बावजूद भी हम इधर प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इधर इज़ यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे नेक्स्ट वाले फिलअप में आप देख सकते हैं, द हॉर्स इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, कैरेज इज़ ऑल्सो डिफरेंट सब्जेक्ट, बोथ आर कंबाइंड विद and these are a compound noun। compound मतलब दोनों को एक साथ यूज़ किया जा रहा, दोनों को एक साथ यूज़ करने के लिए हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर, इज़ एट द डोर, इज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है फॉर अ सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट क्या है, एवरी मैन एंड वुमेन इन द विलेज डैश प्रेजेंट एट द फंक्शन। एवरी, जब हम लोग एवरी यूज़ करते हैं, एवरी मतलब पर्टिकुलरली एक पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, ईच एवरी इन सारे वर्ड्स को यूज़ करने पे एक होता है, तो एक के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स, तो हम लोग सिंगुलर नाउन मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, तो अगर सिंगुलर बोल रहे हैं तो हमारा वर्ब भी ऑफ कोर्स सिंगुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वर्स प्रेजेंट एट द फंक्शन। चलिए इसके साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए।
कमेंट कीजिए, हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, गलत है तो कुछ बताएं और सही करने के लिए हमें और प्रोत्साहन की दीजिए। चलिए, टाटा, बाय बाय।